Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 10th June, 6:45 p.m. right? And today we are gonna discuss market analysis, outlook, and prediction for tomorrow, right? 11th June. And tomorrow will be Fin Nifty's expiry. So we actually do not discuss the chart. It almost 90% of the time it copies the chart of Bank Nifty. So the discussion actually overlaps. But just to inform you, tomorrow is Fin Nifty's expiry, and so we'll see that what discussion we had in morning in our Telegram group, and the fall which we saw in last 2 hours. Did we anticipate that fall? Did we uh, not? I would say predict, but yeah, anticipate is the right word. Did we anticipate that fall? That a fall might come, and on what basis? If we anticipated that, on what basis we anticipated, right? So without taking any more time, let's straight go to our Telegram group, right? uh, right. So I started with this update, right? So Bank Nifty is stuck in range. So as per the charts which happened, the markets reacted on Friday, right? According to those levels, the Bank Nifty was stuck in 49,650 to 50,000. So I clearly mentioned let that range break out, and any closing 15 minutes we get above 50,000, any close above 50,050 for 15 minutes. Why I wrote 50,050? Because क्या होता है कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है. तो I mentioned that any close above 50,050 for 15 minutes we can go long till 5,500. Any close below 49,650 for 15 minutes go short till 48,900. ठीक है. Opening might be flat as everybody saw. Opening was flat. Today banks can stay strong as IT was is 1% down. Then we posted a chart, the probabilities, because market, as soon as the market opened, it went till 50, 200, 250. So I clearly, so this is the point you need to remember, that as soon as the markets are opening, let's suppose 100 point gap up or 200 point gap up, you do not have to enter the calls immediately. Let the market settle down. Let the gap up which happened, let it settle down. Let the market first retrace it till the previous day closing. Then we can make any fresh entries, right? Then as soon as I posted that update, the market came down very sharply, right? Then I pointed one thing which I have pointed earlier also, that Nifty June futures have started trading below spot price, indicating bearish positions in monthly expiry. अब क्या होता है ना, जब भी देखो आपका जो जून का फ्यूचर है या जिस भी मंथ में आप ट्रेड कर रहे हो, उसके फ्यूचर्स अगर स्पॉट से नीचे चल जाए तो उस चीज़ को बैकवर्डेशन कहते हैं. बैकवर्डेशन जनरली क्या होता है, जो आपके जैसे मान लो फ्यूचर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि मार्केट नेक्स्ट मंथ या जो करंट मंथ चल रहा है या नेक्स्ट 15 to 20 डेज कहाँ जाने की कोशिश कर सकता है, वेयर इट कैन गो, राइट? सो आज जो फ्यूचर्स थे वो नीचे आने स्टार्ट हो गए. देखो आप अगर देख सकते हो स्क्रीन पे, इफ यू कैन सी द फ्यूचर्स वर एट 257 बट द स्पॉट वाज 262. जनरली ऐसा होता है, अगर स्पॉट 250 है तो फ्यूचर चलेंगे आपके 350, 340, 330 ऐसे चलेंगे. ओके, दे आर द फ्यूचर्स. इफ द मार्केट इज एंटिसिपेटिंग कि मैं आने वाले 10 दिन में ऊपर जाऊंगा, सो फ्यूचर्स चलते 100 से 120 पॉइंट ऊपर, राइट? बट आज आपके डिस्काउंट में थे फ्यूचर्स, तो इसका जनरली मतलब होता है कि अगर फ्यूचर्स आपके डिस्काउंट में है, तो आपके मंथली में बेरिश पोजीशन बनना स्टार्ट हो गई है, विच मीन्स इन द कमिंग वीक और इन द कमिंग ट्रेडिंग सेशंस मार्केट कैन फॉल, और सेम डे पे ही सेकेंड हाफ में मार्केट फॉल कर सकता है, राइट? एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो वैसा ही हुआ. फिर ऑप्शन सेलर्स के लिए हमने ये दिया कि 23,500 का कॉल शॉर्ट करा दिया. 23,500 का कॉल ट्रेड करा था कुछ 150 पॉइंट प्रीमियम पे, तो अगर आप 150 पॉइंट वहाँ से भी लेते हो तो 650 तक आप सेफ हो, तो ये दिया. एंड ये भी मैंने एक दिया था दैट बैंक निफ्टी माइट डू दिस. देन फिर मैंने ये पॉइंट आउट किया कि बैंक निफ्टी इज अप बाय 200 पॉइंट्स बट एट द मनी प्रीमियम डाउन बाय 30 पॉइंट्स. आज प्रीमियम कॉल्स में इतना डीके था. तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपकी कॉल्स में राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब लोग बेरिश पोजिशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे, राइट? उसके बाद फिर ये हमने दिया. एंड आई थिंक ठीक है. फिर अब आपको याद होगा हमने सुबह ये अपडेट दिया था, और उसके बाद 2 बजने के बाद तो बैंक निफ्टी टक 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 नीचे स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर दिया. अब ये जो हमने शॉर्ट किया था कॉल 240 पे 190 पे आ गया, और ये एंड तो अब पता नहीं कहाँ ही होगा, देखी जाएगी. एंड फिर हमने कुछ और अपडेट दी थी, तो ये हमारा था
एंड फिर हमने दिया कि बैंक निफ्टी आप जो हमारा हमने शॉर्ट सेटअप डिस्कस किया था कि एक बार अगर प्राइसेस आपके 20 के नीचे आना स्टार्ट हो जाए 15 मिनट में, सो दिस इज अ परफेक्ट शॉर्ट सेटअप। और उसका स्टॉप लॉस क्या रहता है, जब तक प्राइसेस वापस 5 के ऊपर ना चले जाए 15 मिनट्स में, या 5 ऊपर 20 को वापस ना काट दे। तो आप इसमें देख सकते हो हमारा एक्टिव सेटअप एक्टिवेट हुआ एंड वहाँ से हमने शॉर्ट कॉल दिए 247 पे। और 247 के बाद तो जो भी पुट्स आपके -10% 20% चल रहे थे, सब +10% में आ गए। तो हमने जस्ट टाइम पे हमने, और ये चीज़ हम सुबह से एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। पूरा दिन साइडवेज था, एग्रीड, बट हमने बुलिश कॉल नहीं दिया। वी फॉर द होल डे वी नेवर गेव एनी बुलिश कॉल कि आप मार्केट को जाके बाय करो, जबकि मार्केट इंट्राडे में ऊपर भी गया 50 था, मतलब नीचे आ रहा था जब हमने ये वाली चीज़ हमने ये कॉल दिया था, राइट, कि बैंक निफ्टी माइट डू दिस। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऊपर भी गया है कैंडल, बट तब भी हमने, हमारा स्टॉप लॉस था कि जब तक आप मार्केट 50 टू 50 के ऊपर क्लोज ना हो जाए। मैंने देखो यहाँ पे, अगर इफ़ यू क्लियरली सी, राइट, जब मार्केट नीचे आया ना, तो नो लॉन्ग्स अंटिल वी क्रॉस बैक 50 टू 50 क्लियरली मेंशन था। एंड फॉर द होल डे बैंक निफ्टी डिड नॉट इवन क्रॉस 50 150 और 200, 250 तो छोड़ ही दो। शॉर्ट्स बिलो 49 650 वो आया नहीं आज, बट आज मार्केट सेटअप ऐसा करके गया है, राइट। तो ये हो गया हमारा टेलीग्राम का डिस्कशन। सो नाउ वी विल सी दैट व्हाट विल बी द डिस्कशन फॉर टुमारो, व्हाट विल बी द क्रूशियल लेवल्स। सो विल स्टार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी एंड ये हमारा पूरा जो बेरिश सेटअप था ये बना हुआ है। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, राइट, एंड आई ब्रिंग इट बैक, बट एक बार हटा देते हैं, थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी। एंड मेरे को समझ में आता है, लोग कहते हैं ट्रेड दो ट्रेड दो, मैं कैसे, आप बताओ, मार्केट जब कुछ कर नहीं रहा, एंड द मार्केट इज डूइंग नथिंग, आप पूरा, इफ़ यू क्लियरली लुक, राइट, मैं आपको डूडल से मार्क करके दिखाता हूँ ना, पूरा दिन मार्केट यूं 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 कर रहा है, मैं क्या ट्रेड दूँ? ऊपर यहाँ पे कॉल शॉट होगा, नीचे यहाँ पुट शॉट होगा ऑप्शन सेलर्स का, क्या इसमें, क्या मैं आपको ट्रेड दे दूँ? लोग बोलते हैं, पीपल आर सेइंग यू डू नॉट गिव द ट्रेड, आप पूरा दिन बैठे रहते हो, ये वो, क्या मतलब? जब मार्केट चलने तो दो, लेट द मार्केट मूव। यहाँ मार्केट मूव किया, मैंने बोला एग्जैक्टली कि यहाँ पे आप शॉर्ट सेटअप बना सकते हो, क्योंकि बना, प्राइसेस ब्रोक इन 15 मिनट्स, प्राइसेस ब्रोक 20 देन वी इनिशिएटेड द शॉर्ट्स एंड देन वी आर इन प्रॉफिट्स, राइट। तो जब ट्रेड होगी, प्राइसेस मार्केट उस लेवल पे आएगा, तब दूंगा ना ट्रेड, ठीक है। तो ठीक है, अब लोगों का काम है बोलना, पीपल विल से कीप सेइंग, बट वी हैव टू डू आवर एनालिसिस, राइट। अब देखो बैंक निफ्टी में कल के लिए आपको क्या लेवल टेक केयर करना है। ऑन द अपसाइड, अगर मार्केट देखो फ्लैट या हल्का सा गैप अप खुलता है, तो आपको अपसाइड पे, अब देखो मार्केट क्लोजिंग चार्ट पे दिए 49 690 के करीब, बट क्लोजिंग आई है 100 पॉइंट ऊपर, एवरेज क्लोजिंग आई है 49 780। तो ये हमने समझा के भी रखा है, जो लास्ट 30 मिनट्स कैंडल की एवरेज प्राइस आएगी, ये देखो इसकी एवरेज प्राइस करीब इस समय के इस पॉइंट पे आएगी, तो 49 780 की आई है। तो अब आपको टेक केयर क्या करना है, 15 मिनट्स में चलते हैं। आज जिस लेवल से मार्केट ने ब्रेकडाउन देना स्टार्ट किया है, आपको बस ये लेवल टेक केयर करना है, विच इज़ द लेवल ऑफ 50,000। कल अगर बाय एनी चांस मार्केट 50,100 या 50,000 के ऊपर एक भी आर्ली, अब मैंने क्या है 15 मिनट्स भी देना छोड़ दिया, देखो आज 15 मिनट्स में यहाँ सस्टेन हुआ 52 50 पे, एंड द नेक्स्ट 15 मिनट्स कैंडल स्टिक केम डाउन। तो अब कंफर्मेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो पहली कैंडल क्लोज होने दो, सेकेंडली लेट द सेकेंड कैंडल ऑल्सो क्लोज, तब आप एक क्या कहते हैं, बुलिश ट्रेड या बेरिश ट्रेड लो सेटअप के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एग्जैक्टली ये लिखा था कि 50,000 के ऊपर 50 मिनट क्लोज हो तो मार्केट को आप बाय कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट सेकेंड कैंडल में ही नीचे आ गया। तो अब किसी ने भी हमारा जो कॉल इंस्ट्रक्शन फॉलो किया होगा, उसने एक यहाँ बाय किया होगा और यहाँ पे ट्रैप, काफ़ी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया। तो अब मैं 15 मिनट्स आई हैव लेफ्ट गिविंग 15 मिनट्स एंड आई हैव शिफ्टेड टू 30 मिनट्स और 1 आवर। तो अगर 30 मिनट्स की या 1 आवर की कैंडल स्टिक आपकी 50,000 ऊपर क्लोज होती है, तो यू कैन नॉट बी इन शॉर्ट्स, और आप मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ऑन द अपसाइड आपको पहला लेवल ये मिलेगा 50 टू 55, इसके ऊपर 50 500, 50 500 भी निकलेगा, तो फिर मार्केट को स्ट्रेट ये वाला लेवल आपको 51,000 मार्केट दिखाएगा, राइट। ओके, ऑन दैट डाउन साइड अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, एंड फ्लैट खुल के जो आज का, अच्छा हमारा पहला रिचुअल तो हम भूल ही गए, लेट्स गो एंड मार्क आर डे हाई एंड डे लो। देखो डे हाई तो हमने एक मार्क कर ही दिया, डे लो भी मार्क कर देते हैं। एंड मार्केट ने आज क्लोजिंग डे लो से थोड़ा सा बस ऊपर दिया, राइट। तो वील मार्क दिस डे लो एंड या, सो लेट्स अगेन गो बैक टू 15 मिनट्स। सो डे लो देखो क्या निकल के आ रहा है 49 620, एंड हमने जो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन किया था 49 650 टूटने दो,
उसके नीचे अच्छा मूव मिलेगा ना, आज डे लो भी वहीं लगा है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इसी रेंज में कहीं फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के मार्केट 49,620 या 630 के नीचे पहली 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज करता है, सो यू कैन गो शॉर्ट इन द मार्केट फॉर अ टारगेट ऑफ, पहला टारगेट आपको ये वाला मिल जाएगा, 49,000 ही मिलेगा आपको। अच्छा अभी तो 40 नहीं, पहला टारगेट देख लो 49,500 का मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, ये देखो 49,500। 49,500 भी अगर मार्केट तोड़ता है तो 49,500 तोड़ने के बाद पहला लेवल तो आपको सीधा यही मिलेगा 49,000। अब यहाँ पे मेरे को 49,500 टूटने के बाद मेरे को कोई ऐसा सपोर्ट दिख नहीं रहा, इसलिए द मोमेंट 49,500 टूटेगा आपको सीधा अच्छा 49,000 मिलेगा। 49,000 टूटता है तो फिर आई थिंक वाटरफॉल आ जाएगा सीधा 48,500 तक। 48,500 तक कोई सपोर्ट नहीं है, 48,500 भी गया तो 48,000 हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुल जाए तो कैसे आप ट्रेड करोगे? गैप डाउन खुले बहुत बड़ा मार्केट तो आपके हाथ से देखो पहले ट्रेड तो चली गई, करेक्ट। अब मार्केट गैप डाउन खुले तो देखो ये जो जितने यहाँ पे शॉर्ट्स हैं ट्राई करेंगे बुक करना, और थोड़ा लोग बाय भी करेंगे इन द एंटिसिपेशन की जो लोग लॉन्ग्स कैरी करके गए हैं वो और एवरेज करेंगे। तो जैसे ही गैप डाउन खुलेगा मार्केट आ सकता है कि 49,000 पे सपोर्ट ले अगर गैप डाउन होता है, या 49,500 पे यहाँ कहीं खुलता है, तो एक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग तक अप मूव दिखा सकता है एंड वहाँ पे परफेक्ट लोकेशन, जैसे मान लो यहाँ मार्केट यहाँ खुला 49,200 तो एक अप मूव यहाँ आ सकता है, यहाँ पे मार्केट फिर एक रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ दिस वुड बी द परफेक्ट प्लेस फॉर शॉर्टिंग द मार्केट्स अगेन, राइट। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो देखो यहाँ पे जितने लोग आज आपके शॉर्ट करके गए हैं वो एक ट्रैप्ड सिनेरियो फील करेंगे। सो गैप अप अगर खुले मार्केट तो आपको क्या टेक केयर करना है, मान लो मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है 50,000 के ऊपर स्ट्रेट मार्केट खुल गया, तो आपको अगर आप शॉर्ट्स में हो तो आपको शॉर्ट्स तो एग्जिट करना ही है एंड लेट द मार्केट कम बैक टू दिस प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड देन यहाँ पे हम मार्केट को ट्रेड करना, तो यहाँ से कुछ ऐसा सिनेरियो बनाएंगे, राइट। सो ये था बैंक निफ्टी के लेवल्स इंट्राडे फॉर टुमारो। लेट्स गो टू, अच्छा एक बार बैंक निफ्टी का ओआई डेटा देख लेते हैं, ठीक है। आज ओआई डेटा में आपको मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ें स्ट्रेंज हुई हैं। देखो आज 60 से मतलब डबल द अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग होके गई है विच इज़ बेरिश फॉर टुमारो, राइट। अगर आप देखोगे 60 अराउंड 67 लाख कॉल हुई है, और आप देखोगे रेड बार्स भी आपको कितने सारे रेड बार्स दिख रहे होंगे, राइट। सो दिस इंडिकेट्स दैट मार्केट आज मार्केट किसी चीज़ के एंटिसिपेशन में इतना शॉर्ट होके गया है। अच्छा एक और चीज़, ये जो ओवाई डेटा है ये एनएससी का ओवाई डेटा एनएससी दिखाता है, राइट। अब इसमें आप देखो आज मार्केट एवरेज कितना, बैंक निफ्टी डाउन क्लोज हुआ है 22 पॉइंट्स, राइट। एवरेज क्लोजिंग 22 पॉइंट्स नीचे की आई है, बट आपके कॉल के प्रीमियम्स कितने टूट गए, 300 पॉइंट्स। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आज मैंने कॉल शॉट दिया था बट बैंक निफ्टी में नहीं निफ्टी में दिया था, वो अच्छा चला। बट आज देखो पुट्स इतने नहीं बढ़े हैं, आपका मार्केट 22 पॉइंट टूटा है सिर्फ, बट आप ये देखो 10 टाइम्स द अमाउंट मार्केट ने आज कॉल ऑप्शन ने फॉल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आज मार्केट नॉट श्योर कि किस चीज़ के एंटिसिपेशन में आज लोग कॉल शॉट कर रहे थे। आप ये देखो यहाँ से 49,000 से कॉल शॉट हटा के मार्केट एट द मनी लिया है। सो मार्केट में हैवी कॉल शॉर्टिंग थी आज, राइट। तो अब ये फ़र्क होता है पुट बाय करने में और कॉल शॉर्ट करने में। कभी कभार कॉल शॉर्ट आपको ज़्यादा पैसे देके जाता है, राइट। अगर आप वेरेज ओवाई डेटा ग्राफ में देखोगे तो मैं आपको एक बार इंट्राडे में, तो आज जो ओवाई चेंज आया है वो तो बेरिश है। टोटल ओवाई हमारा क्या चल रहा है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, राइट। टोटल ओवाई जो हमारा चल रहा है वो ओवाई पे अगर हम क्लिक करेंगे तो मेजर रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है 50,000 ऑन द अपसाइड। अगर वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर 50,100 मार्केट सस्टेन करता है तो ये सारे कॉल राइटर्स पैनिक करेंगे, आपको शार्प अप्रूव मिल के आएगा। वेयर एज ऑन द डाउन साइड मार्केट 49,000 को एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंटिसिपेट कर रहा है। तो अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो मतलब 48,900 के नीचे सस्टेन करता है तो आप ये वाले जितने पुट राइटर्स हैं सब पैनिक करेंगे एंड आपको एक अच्छा डाउन मूव करके आएगा, राइट। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी ने आज देखो क्या किया है, एंड हमने मॉर्निंग में एक निफ्टी का कॉल शॉट भी दिया था 22,500 का इन द एंटिसिपेशन कि मार्केट इसको नहीं निकालेगा ऑन द अपसाइड। तो वो आज 240 पे शॉट दिया था एटलीस्ट, आई थिंक वो करीब करीब किस लेवल तक आ गया, आई थिंक 180 समथिंग तक आ गया, तो उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है कॉल शॉट में, राइट। सो अब देखो इसमें क्या डिस्कशन करना है, अब जो ट्रेंड हमारा चल रहा था, मैंने अगर आप फ्राइडे की वीडियो जाके देखोगे केयरफुली, सो व्हाट आई डिस्कस्ड ऑन फ्राइडेज वीडियो कि मार्केट, एक बार इसको मैं ना 1 आवर पे लेके जाता हूँ एंड आई सेलेक्ट द डूडल, कि मार्केट ये यहाँ से इतनी शार्प रैली किया है तो मार्केट इस
एक ही संग ऊपर वापस नहीं निकल जाएगा। अगर ये निकलता भी है तो वो स्ट्रेट नीचे आ जाएगा, वो सस्टेन नहीं करेगा। यही मैंने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट को यहाँ से 25,000 की तरफ जाना है तो इस रैली का एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट करे। तो वही मार्केट ने एक जर्नी स्टार्ट की है। देखते हैं कि मार्केट किस लेवल तक नीचे डाउन साइड पे आता है। तो मार्केट ने एक ट्रेंड बेंड की प्रोसेस तो देखो स्टार्ट की है, एंड 1 आवर में भी आज इफ़ यू विल केयरफुली सी राइट, 1 आवर में भी आज मार्केट ने थोड़ा सा ये देखो ट्रेंड बेंड होना स्टार्ट किया। ये देखो यहाँ पे पहला बैंड आया था, फिर कंटिन्यूशन किया, अब यहाँ पे पहला बैंड, और ये करके कुछ ऐसा आ जाएगा मार्केट। लेट्स होप कि ऐसा ही हो, राइट। तो अब चलते हैं इंट्राडे लेवल्स डिस्कस करने के लिए निफ्टी पे। इसमें आपको क्या लेवल टेक केयर करना है, अगर देखो मार्केट फ्लैट खुलता है एंड फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, एंड जहाँ से आज पहला ब्रेकडाउन आया था ये वाला लेवल आपको टेक केयर करना है 22,380। अगर मार्केट 22,380 कल निकालता है तो पहला मूव आपको 400 मिल जाएगा। 22,400 इतना मायने नहीं रखता, अगर ये पॉइंट निकलता है सीधा पहला मूव 23,500, एंड 500 के ऊपर सीधा 750 आपको मिलेगा, राइट। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट फ्लैट खुल के आज अगर, अच्छा चलो इसमें भी पहले चीज़ डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। डे हाई हमारा हो जाएगा ये वाला, एंड डे लो तो आज क्लोजिंग ही शायद डे लो पे आई है ऑलमोस्ट। अगर आप 1 आवर में चल के एक बार अपन देखते हैं तो डे लो ही है, ठीक है। तो 15 मिनट्स में चलते हैं वापस, एंड ये देखो डे लो पे क्लोजिंग है, ये चार्ट पे क्लोजिंग है 324, एवरेज क्लोजिंग है 259, 23,259, और चार्ट पे क्या क्लोजिंग है। अच्छा, निफ्टी में तो नीचे क्लोजिंग आई है। ओके ओके, नहीं 234 है, 324 नहीं 234 है, ठीक है। तो 20 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग आई है, राइट। तो अगर मार्केट कल ये जो निकालता है लेवल 23,234, तो पहला लेवल ऑन द डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा ये वाला 23,151। 23,151 भी टूटता है तो मेरे को उसके बाद फिर 23,000 पहला सपोर्ट दिख रहा है, राइट। ये वाला 23,000 निकलता है तो फिर सेकंड आपको ये मिल जाएगा 22,900 का लेवल, राइट, ऑन द डाउन साइड। ऑन द डाउन साइड कंडीशन क्या है कि डे लो निकाल दे बस। अगर मार्केट देखो फ्लैट खुलता है हल्का सा 30-40 पॉइंट गैप अप यहाँ पे ट्रेड करेगा कुछ समय, ऑन द अपसाइड अगर फ्लैट खुल के ये वाला लेवल निकालता है हमारा 23,370 या 380, तो अपसाइड जा सकता है। बट जो ओ आई डेटा बन के गया है, प्रोबेबिलिटी है कि एक मार्केट डाउन मूव कंटिन्यूएशन मार्केट दे दे, एंड हम नीचे 22,900 की लेवल्स देख सकते हैं, राइट। तो ये निफ्टी का डिस्कशन है। मैं एक बार आपको डेली पेस पे दिखाना चाहता हूँ। आर्ली पे देखो सिंपल है, बहुत क्लियर है सिनारियो। ये जो शार्प रैली हुई है इसका 50% रिट्रेसमेंट आना चाहिए, तब जाके मार्केट ये वाली और ऊपर वाली जर्नी स्टार्ट कर सकता है हमारी 24,000 25,000 की। तो मार्केट का मूव करने का पैटर्न ये होता है, राइट। तो ये वाली जर्नी स्टार्ट किया और हम इसका टारगेट जो हमारा डाउन मूव का आ रहा है वो आ रहा है 22,800 900। तो ये 22,800 900 एक मार्केट को बेस बनाना चाहिए यहाँ पे। अगर ये नहीं बनता और 22,800 की भी लेवल टूटती है ये वाली 22,900 की, तो मेरे को स्ट्रेट फॉल 22,500 का दिख रहा है। इफ 500 गेट्स टेकन आउट 22,000 मुझे स्ट्रेट ऑन द कार्ड्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ की लेवल्स है और अपसाइड की लेवल्स मैंने आपको दे दी है। ये है निफ्टी का डिस्कशन। एक बार निफ्टी का ओ आई डेटा हम देख लेते हैं। अगर निफ्टी का ओ आई डेटा आप देखोगे, देखो क्या दिखता है निफ्टी में। ओ आई चेंज में आज लोग क्या करके गए हैं हैवी, एक सेकेंड रुक जाओ, ये तो मंथली है, राइट। आज अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ, कॉल राइटिंग हुआ है विच इज़ बेरिश फॉर टुमारो। देखो ऑलमोस्ट 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज राइट किए हैं, एंड मेजर रेजिस्टेंस आपका निकल के आ रहा है 23,500। तो इसलिए मैंने 23,500 का कॉल भी शॉर्ट कराया था कि मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा है कि मैं 23,500 के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग होती है वहां से ऊपर जाने में बहुत आपको डिफिकल्ट एक मूव होता है। तो 23,500 हैवी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलता है तो आपको फिर 24,500 देखने को मिल सकता है। बट नियर टू दैट द मनी 23,300 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड अब देखो मार्केट क्या है, कल अगर गैप डाउन खुल गया तो ये जितने भी पुट राइटर्स हैं ना 23,300 के, ये पैनिक करेंगे और आपको डाउन मूव ट्रिगर करके देंगे। ऑन द डाउन साइड इतना आज कोई मार्केट में सपोर्ट बन के कि नहीं गया है। अगर आप टोटल सपोर्ट देखोगे ऑन द डाउन साइड 23,000 रिमेन्स द क्रूशियल सपोर्ट फॉर द मार्केट। अगर 23,000 टूटता है या मार्केट आपका मान लो 22,900 सस्टेन करने लग जाता है, तो आपको पहला मूव, ये जितने भी 23,000 के पुट राइटर्स हैं ये सब पैनिक करेंगे, आपको मूव आएगा 22,800 22,700, और 23,500 स्टिल टोटल वाई में हमारा रेजिस्टेंस रहता ही है। एक बार मंथली अगर वाई डेटा हम डिस्कस कर ले तो वो भी एक बेटर पिक्चर क्लियर हमें करके देगा कि आने वाले वीक्स में क्या हो सकता है। वही 23,000 इज़ अ गुड यू नो
support, and on the upside 23,500 still remains the same. तो 23,000 एंड 23,500 आप एक रेंज मान के चलो, आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में मार्केट इसी के अराउंड ट्रेड कर सकता है। तो अभी 200 है, तो एक मूव आप एंटिसिपेट कर सकते हो। अगर मार्केट निफ्टी 50 कल प्रीवियस डे लो तोड़ता है तो 23,000 तक का मूव आपको मिल सकता है नेक्स्ट कमिंग 2 डेज में, राइट। और अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई निकालता है तो आपको फिर वही 23,500 मिलेगा। 23,500 पे जाके मार्केट स्टॉप करेगा, क्योंकि हैवी कॉल राइटिंग है बोथ इन मंथली एंड वीकली ऑप्शंस। वहाँ से एक फिर आपको एक 100 पॉइंट का डाउन मूवमेंट मिलेगा 400 तक, फिर 400 450 पे बेस बना के निकाल देगा मार्केट। बट कंडीशन क्या है कि प्रीवियस डे हाई मार्केट को निकालना चाहिए। अच्छा, डेली में अगर आप देखोगे तो डेली में अभी तक भी प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो डेली में तो ट्रेंड बेरिश है, ओ सॉरी बुलिश है, हैवी बुलिश है। बट आर्ली में मार्केट ने बेरिश ट्रेंड अपना स्टार्ट कर दिया है, राइट। क्योंकि बेरिश ट्रेंड के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी हमारी टाइम फ्रेम की प्रीवियस कैंडलस्टिक है उसके लो के नीचे क्लोज आ जाए। तो आज आर्ली में तो यही कर दिया मार्केट ने, तो अब आर्ली के हिसाब से आप बुलिश तब तक नहीं आ सकते जब तक आपका ये प्रीवियस आर्ली कैंडलस्टिक का हाई ना निकले। अब कल वाली जो आर्ली फर्स्ट कैंडलस्टिक होगी उसके लिए हाई ही होगा। तो मार्केट एक बार अगर, इसलिए बोल रहा हूँ कि 320 निकालता है मार्केट तो आपको स्ट्रेट मूव मिलेगा 370 380 तक। ठीक है, इस चीज़ का टेक केयर करना। आई होप आपको लेवल्स क्लियर हो, आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग मिलती हुई वीडियोस से, राइट। इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर आपको मालूम होगा हम क्या डिस्कस करते हैं। हमने जो फ्राइडे को डिस्कस किया कि मार्केट और ऊपर जाने का नहीं रखता, बाइंग सैचुरेटेड। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी क्लियरली लिखा था कि फ्राइडे को मैंने एंडिंग में भी यही लिखा था कि मेरे को नहीं दिख रहा मार्केट ऊपर जाता हुआ। एंड उस दिन क्या हुआ कि आई थिंक 2:50 टू 3 o'clock बज गया, तो मेरे को फ्राइडे को शॉर्ट्स कैरी करके जाने का मैं नहीं, मेरे को आदत नहीं है। वीकेंड को कुछ भी हो सकता है, मान लो मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर खुल गया, क्या कर लोगे आप, ट्रैप्ड हो। इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो, मंडे आके देखेंगे, अगर सेटअप बनता है तो हम शॉर्ट्स कैरी करेंगे, हम शॉर्ट्स लेंगे। और आज हमारा सेटअप बना एंड मार्केट ने आज एग्जैक्टली जैसे हमने फ्राइडे की वीडियो में एंटिसिपेट किया था कि मार्केट में जो बाइंग है वो सैचुरेट हो चुकी है एंड वी नीड अ हेल्दी रिट्रेसमेंट टिल एटलीस्ट 50%। जो ये पूरी अपना ली हुई है उसका 50% एटलीस्ट हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। तो आप रेगुलर व्यूअर हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट इन द वीडियो, वीडियो को सपोर्ट मिलेगा, इसका रीच बढ़ेगा। एंड अगर आप न्यू व्यूअर हो एंड इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, लीव अ लाइक। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट।